See, I am going to copy one file, okay, in this location. I am going to copy one file, copy purpose CP. What I am going to copy? PASSWD. But this file is available in ETC. Okay, clear? I am going to copy PassWD file from ETC because it is available in ETC. Where I want to copy? In my current location. Dot. Enter. LL. Check it. Difference between this above portion and this below portion. PassWD file is there, na? Fine. So this file just now I copied it. It is a huge file. So many datas are there. At 9:32, 5th Feb, I copied it. Clear? So now I am going to check this file content. How to check? Cat PassWD. So it will show the content. Little portion is already scrolled. If you check, yes, from here. Okay, 2-3 line already scrolled. Now, what is my target? To clear the screen, either clear or Control L. Now I am going to use the same command cat, but before that I just use -n. What is the effect of -n? Number. Okay, check it. It will show the line number. If I drag it little bit more, I think, yeah, it will show the details 1 to 36. Fine. So cat -n file name, it is going to show the file content with line number. Now, if I want, suppose this is a file, log file, 5,000 lines are there. Okay. And whenever any new log is going to add it, it is at the end only. Okay. So if I use cat -n, it is going to scroll 5,000 line. It will take 2 minutes, 3 minutes. So I want to check first 10 lines or last 10 lines. Okay. I want to check first 10 lines of this file or last 10 lines of the file. How to check? HEAD, head, PASSWD. It is going to show first 10 lines. Okay. But it is not going to show the line number. If you count, it should be first 10 lines. Even you can utilize this command, then pipe symbol. Pipe means first command output should be the input of the second command. In second command, I am using cat -n. What it is going to receive from head command by the cat is going to show the same thing with line number. Okay. Check it. Now it is showing 1 to 10. If I want to check last 10 lines, then tell. This way or pipe cat -n. This way. Last 10 lines. Okay, last line is Anand. Clear? But suppose I want to check first 5 lines of the file or first 15 lines of the file, not 10. 10 is the exact value if I use head command. My requirement less than 10 or more than 10. Okay, how it is possible? Then we have to mention HEAD, head -n 5 PASSWD. What is the meaning? Head means first 5 lines. I mention how many lines. From which file? PassWD file. Now it is going to show you first 5 lines. But if you want to check with line number, then pass it to cat -n. First 5 lines.
or same command first 15 lines. Check it. Same as tail also. Okay. I hope it is clear. Very simple. Head, tail, and combination with cat. Now, cat minus n PASSWD. I want to check line number 21 to 25. These 5 lines. 21 means lib storage management, MGMT or something. And 25 is cockpit, right? From there to there, 21 to 25. How it is possible? Any idea? Any, that is from this file, mid, any line. No, there was no command, but one command is there. HEAD head minus n 25 PASSWD. What is the meaning of this? 25 lines. First 25 lines. Okay. This first 25 lines, if I pass it to tail and mention 5, what happen? Tail is going to receive this 25 lines. From that 25 lines, it is going to show last 5 lines. Tail always use last 5 lines. Then, if you are interested, you can use cat minus n with line number 1 to 5. Okay. So check it. Lib storage to cockpit. Fine. This is also logical. First I use head, so first to last up to this, then tail from last to this much, then pass it to cat for line number. Clear? Now my target is, I want to, already one file is there, passwd. Okay. I want to create one file, another file, passwd 10. And what should be the content of that file? First 10 lines of that passwd. Then how to create it? So, head passwd, first 10 lines. Now pass it to cat minus n with line number. Now redirect passwd 10. I am telling that cat is going to show where? On screen. That is my standard output. Okay. But I am telling you, please redirect that output to that file, a new file. Press enter and LL. Check it, one more file is created, passwd 10. At what time? 9:40. How to check the content? Cat passwd 10. Check, only 10 lines, including line number, everything. Okay. I just generate it and convert it to another file. Clear? Now, mkdir, make directory dx, ll, dx is created. This is at 9:40. Okay, this first character is D. What is the meaning? It is a directory. First character hyphen means it is a file. So dx directory is created. Now I want to create another directory inside of dx, dy. Okay, I want to create a directory dy where inside of dx, not in under root. So I have to mention mkdir dx dy. Dx already available, so mkdir is going to create dy inside of dx. How to check it is created or not? Number one option is ls hyphen l and dx. That means I want to say inside of the dx. It will show inside of the dx dy is there. Fine.
डीएक्स के अंदर आपका ये है टॉप लेवल सी ड्राइव जैसे, इसके अंदर क्या होता है रूट। मैं यहां पर हूं, मैंने बनाया dx, तो वो यहां पर dx बनाया, फिर dx के अंदर dy बनाया। तो dx कहां पर है? रूट के अंडर में है ना। अगर आप dx से पहले स्लैश देंगे mkdir स्लैश, देन ये इसके अंदर बन जाएगा, यहां बनेगा dx, रूट के अंदर नहीं बनेगा। जैसे मैं कुछ बना रहा हूं, मान लीजिए होटल में 3-4 रूम है, रूम ABCD, उसमें टेबल नंबर है 1 2 3 4, ठीक है। अभी एक रूम है जो A रूम, उसमें ABCD कुछ नहीं है, अदर रूम में ABCD है, और इसी में ही किचन है। तो मैंने बताया टेबल नंबर 10 में ये सब कर, तो इस रूम का ही टेबल नंबर 10 में सब कर। मैंने बताया टेबल नंबर 10 A10 या B10, तो क्या करेगा वो? उसी रूम में जाएगा पहले, फिर उसी टेबल में जाएगा। तो मैंने यह बताया dx बनाओ, कहां बनाएगा? यहां ही स्लैश रूट के अंदर। अगर मैंने मेंशन कर दिया dx बनाओ और स्लैश में जाकर, तो पहले स्लैश में जाएगा फिर dx बनाएगा। तो मेरा जो टारगेट है वो अलग हो जा रहा है, ठीक है, क्योंकि इसका डायरेक्ट स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी देखिए dx के अंदर dy तो बना है, लेकिन ऐसे अगर 5 डायरेक्टरी 10 डायरेक्टरी आपको बनाना है एक ही साथ, मतलब डायरेक्टरी उसके अंदर डायरेक्टरी उसके अंदर डायरेक्टरी, ऐसे वो कैसे बनाएंगे? चलिए देखते हैं। तो पहले मैं एक काम करता हूं, rm माइनस rf dx, ये पूरा dx dy सब गया एक साथ। ये जो मैंने r लगाया ना, r का मतलब है रिकर्सिव। तो dx के अंदर जितना भी कुछ है, फाइल डायरेक्टरी जो भी है, सब डिलीट हो जाएगा, फिर वो भी डिलीट हो जाएगा, ठीक है। मैं क्या कोशिश कर रहा हूं, mkdir d1 d2 d3 d4 d5, मुझे 5 डायरेक्टरी एक साथ चाहिए। d1 के अंदर d2, उसके अंदर d3, उसके अंदर d4, ठीक है। लेकिन ये कमेंट जब मैं दे रहा हूं, देखिए क्या दिया वो, नो सच फाइल और डायरेक्टरी। एक्चुअली कंप्यूटर को क्या मतलब, उसको समझ में क्या आया? उसके समझ में आया कि लास्ट वाला बनाओ, d5 बनाओ, और d1 d2 d3 d4 है, वो है इसलिए तुम उसको बनाओ। तो वो क्या कर रहे हैं, क्या लिखा, मेक डायरेक्टरी कैन नॉट क्रिएट डायरेक्टरी दिस वन, नो सच फाइल और डायरेक्टरी, मतलब d4 तो है ही नहीं, और तुम मुझे d5 बनाने के बोल रहे हो d4 के अंदर बनाओ, तो d4 तो है ही नहीं, वो बनाएगा नहीं। समझ में आया? लेकिन मैं अगर उसको ये समझा पाऊं कि भाई तुम d1 से लेकर पूरा ही बनाओ, एक एक करके, एक के अंदर एक, एक के अंदर एक, तो वो बनाएगा। अभी मैंने उसको जो कमांड दिया उसको समझ में इतना ही आया कि d5 बनाओ, कहां पर? d4 के अंदर। जो d4 d3 के अंदर है वो d2 के अंदर है, लेकिन ऐसा कुछ है ही नहीं उसके पास, इसलिए वो एरर दे दिया। लेकिन इसी कमांड में अगर मैं यहां पर एक ऑप्शन जोड़ देता हूं -p, इसका मतलब है पाथ, मतलब ये कंप्लीट पाथ को बनाओ। अभी वो d1 बनाएगा, उसके अंदर d2 बनाएगा, d3 बनाएगा, एक एक करके सब बना देगा, ठीक है। देखिए अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बन गया ये। अगर आप ll करेंगे तो यहां पर आपको d1 देखते नजर आएगा, सेकेंड ऑप्शन देखिए। लेकिन मुझे इसके अंदर भी तो देखना है, d1 के अंदर d2 d3 d4 ये सब बना कि नहीं बना। तो उसे देखने के लिए एक अच्छा कमांड है ट्री, ठीक है, ट्री और स्टार्टिंग वाला एंटर कर दीजिए। देखिए ट्री स्ट्रक्चर में उसको दिखा रहा है इसके अंदर क्या क्या है, ठीक है। हाँ, d1 के अंदर d2 d2 के अंदर d3 d3 के अंदर d4, ऐसे ही है। मैं अभी एक फाइल बनाना चाहता हूं कैट कमांड से या टच कमांड से d4 के अंदर। तो मैं अगर लिखा touch टच और f1 या fx फाइल, ये कहां बनेगा? रूट में ही बनेगा, यहां ही बनेगा, रूट में ही। ये ll करेंगे तो दिखाएगा, जैसे d1 आ रहा है fx भी आएगा। लेकिन इससे पहले अगर मैं पाथ बता दिया, ये fx बनेगा कहां, मैं ऐसे बता रहा हूं,
तुम D1 के अंदर जाओ, D2 के अंदर जाओ, D3 के अंदर जाओ, D4 के अंदर जाओ, फिर वहाँ पर fx को बनाओ। सर माइनस पी लगाना होगा ना? नहीं, ये तो बन गया है अभी, ये तो है। माइनस पी ऑप्शन होता है एम के डी आर के साथ, ठीक है। ये ट्री कमांड, फाइल कमांड के साथ माइनस पी नहीं चाहिए। अभी देखिए मैंने क्या बताया उसको, टच कमांड से एक फाइल बनाओ fx, लेकिन कहाँ बनेगा मैंने वो दे दिया, और वो है, ऐसा नहीं कि नहीं है, वो है। तो ये फाइल बन गया। देखेंगे कैसे, फिर से ट्री करो, देखो fx फाइल आ गया D4 के अंदर, D4 के अंदर D5 है डायरेक्टरी और fx है फाइल, क्योंकि वो व्हाइट कलर में दिखा रहा है। आगे इससे भी ज्यादा जानकारी चाहिए तो मैं ऐसा कर सकता हूं, ट्री माइनस पी D1। इससे क्या होगा, यहां P का मतलब परमिशन, पाथ नहीं। ट्री के साथ जो P है वो परमिशन, MKDR के साथ जो P है वो पाथ था। हर कमांड का अलग अलग ऑप्शन होता है। तो इसमें देखो परमिशन दिखा रहा है, हर एक के साथ उसका परमिशन जो होता है ना, जो RWX वो परमिशन होता है। जैसे मैंने ये लाइन बताया था कल, ये जो दिख रहा है ये क्या है, फाइल नेम या डायरेक्टरी नेम। ये डायरेक्टरी कलर वाला जो है, उसके आगे क्या है, ये डेट एंड टाइम, कब बना है ये फाइल, ठीक है, February 4 9:54 में। इसके आगे क्या है, ये स्पेस इतना बाइट से ऑक्यूपाई कर रहा है। इसके आगे क्या है, ये फर्स्ट वाला रूट जो है वो है ओनर, इस फाइल का ओनर, यूजर, और वही ओनर इस ग्रुप का मेंबर, सेम नाम का ग्रुप है उसका मेंबर, ठीक है। ये जो 1 2 जो नंबर दिखा रहा है यहां पर, ये है लिंक। हम लोग सीखेंगे लिंक क्या होता है। इसके आगे ये जो है ऑप्शन, इसका फर्स्ट कैरेक्टर अगर हाइफन है तो ये फाइल, डी है तो ये डायरेक्टरी, लास्ट कैरेक्टर ये डॉट का मतलब है, ये जो डॉट है, डॉट का मतलब है ये जो फाइल है AC लिनक्स एनाबल्ड है। AC लिनक्स एक अलग सा लेवल का सिक्योरिटी होता है लाइनक्स में, जो दूसरे OS में नहीं होता है। SE सिक्योरिटी एनहांस लाइनक्स, OS में एक कॉमन लेवल का सिक्योरिटी होता है, वो होता है फायरवॉल। विंडोज में भी है, लाइनक्स में भी है, हर जगह पर है फायरवॉल, ठीक है। वो एक कॉमन लेवल सिक्योरिटी होता है, लेकिन लाइनक्स का ये एक एक्स्ट्रा लेवल सिक्योरिटी है, ठीक है। दोनों में अंतर क्या है बाद में सीखेंगे हम। तो ये डॉट बताता है कि ये AC लिनक्स एनाबल्ड है, और ये जो हाइफन और डॉट के बीच में या डी और डॉट के बीच में 9 कैरेक्टर है, 9 कैरेक्टर है यहाँ पर, ठीक है। ये जो 9 कैरेक्टर है ये 3 3 3 में बटा हुआ है, 3। फर्स्ट 3 जो है 3 कैरेक्टर्स, वो क्या होता है, यूजर का परमिशन। नेक्स्ट 3 जो है वो ग्रुप का परमिशन, लास्ट 3 जो है वो अदर्स का परमिशन। परमिशन में क्या होता है, रीड राइट एग्जीक्यूट। देखिए यहां पर RWX लिखा हुआ है, मतलब यूजर का परमिशन रीड राइट एग्जीक्यूट पूरा है इस D1 के ऊपर, लेकिन ग्रुप को क्या है, रीड और एग्जीक्यूट, राइट नहीं है। अदर को क्या है, रीड और एग्जीक्यूट, राइट नहीं है, ठीक है। परमिशन हम सीखेंगे, लेकिन अभी जस्ट इतना ही सीखना है, क्योंकि यहाँ P देने से ये परमिशन आ रहा है, कौन सा डायरेक्टरी का क्या परमिशन है। सर ये 12 क्या है? कौन सा, टोटल 12। हाँ, ये जो टोटल 12 होता है, इसका मतलब क्या होता है, यहाँ आप अगर काउंट करेंगे तो 13 है। हाँ, नहीं तो 12 से कम ज्यादा सेम कुछ भी हो, लेकिन ये 12 मतलब ये नहीं कि यहाँ 12 है फाइल, अच्छा वही। ठीक है। विंडोज में दिखाता है टोटल इतना फाइल इतना डायरेक्टरी, यहाँ पर 12 का मतलब होता है, यहाँ जो दिख रहा है ये जो फाइल वगैरह दिख रहा है, फाइल डायरेक्टरी, ये कितना ब्लॉक यूज कर रहा है, ठीक है। OS लेवल जो हार्ड डिस्क होता है, जहां पर OS इंस्टॉल होता है, वो ब्लॉक लेवल होता है, मतलब एक जैसे वॉल बनाता है ना, एक एक ब्रिक्स, एक ब्लॉक आता है, उसी तरह एक एक ब्लॉक आता है। वो 512 बाइट्स का हो सकता है, 1024 बाइट्स का हो सकता है, एक एक ब्लॉक, मतलब मेमोरी ब्लॉक, नहीं हार्ड डिस्क का ब्लॉक। हार्ड डिस्क। तो ये OS जब भी कुछ सेव करता है ना, वो एक एक ब्लॉक में सेव करता है, ब्लॉक का एड्रेस नोट करता है, ये फाइल इस ब्लॉक में है, ठीक है। तो वहां से उसको पता चलता है कहां पर क्या है, क्लियर। तो तो सर यहाँ पे पासवर्ड और पासवर्ड 10 आई थिंक एक ब्लॉक में यूज किया है। नहीं, एक एक ब्लॉक यूज करता है, अलग अलग, एक ही ब्लॉक में यूज करेंगे तो मुश्किल होगा। देखिए मैं मानता हूं आपने किसी
जगह पर गया, टेम्पल वेम्पल कहीं पर हुआ, उस बाहर क्या होता है, जूता रखने के लिए एक जैसे एक बहुत बड़ा रैक होता है, छोटा छोटा ब्लॉक होता है। आपने जूता दिया, आपका जूता एक हो या दो हो या चार हो, वो ब्लॉक में रख दिया, एक टिकट रखा हुआ और एक टिकट आपको दे दिया, है ना। इसी से पता चलेगा ये आपका है। अभी आपने अकेले ही गया, अकेले एक ब्लॉक में रखा, इन्होंने अकेले गया, अकेले एक दूसरे ब्लॉक में रखा, सेम ब्लॉक में नहीं रखेगा। सेम में अगर दो फाइल रख दिया, दोनों का जूता रख दिया, तो कंफ्यूज हो जाएगा लेने के टाइम। आप आ गए तो इसका जूता दे दिया, ये आ गया तो आपका जूता दे सकते हैं, पता नहीं चलेगा ना। इसलिए अलग अलग होता है। तो ब्लॉक में अगर स्पेस है भी, लेकिन एक ही फाइल हो रखेगा, ठीक है। और वो एक फाइल देखिए यहाँ क्या हो रहा है, ये जो 3 फाइल है ना, ये 4 ब्लॉक यूज करता है, ये मिलाकर 12 ब्लॉक हो गया। कैसे देखेंगे इसको, ls-ls, मतलब ls-l के साथ s जोड़ना है, ठीक है। देखिए यहाँ ब्लॉक दिखा रहा है फर्स्ट ऑप्शन में, ये 4 ब्लॉक, ये दोनों भी 4 ब्लॉक, टोटल 12 ब्लॉक आ गया यहाँ पर, ठीक है। अभी ls के साथ मैन ls, इसमें s था, आपने s दिया था, s थोड़ा लास्ट में ही होगा, l तो लॉन्ग लिस्ट आपको पता ही है, ये देखिए l यहाँ बता रहा है, यूज ए लॉन्ग लिस्टिंग फॉर्मेट, मतलब सब कुछ डिटेल्स दिखा रहा है जो। और s का मतलब हो गया MNOPQRST, देखिए साइज, प्रिंट द एलोकेटेड साइज ऑफ ईच फाइल इन ब्लॉक्स, ठीक है, फाइल का ही दिखाता है, हो गया। Q, मैं क्विट किया वहां से, स्पीड से बोलो। हर कमांड के अंदर डिफरेंट डिफरेंट मतलब वर्ड्स, लाइक सपोज ls यूज किया, उसके अंदर अलग अलग वर्ड। हाँ देखो, जब भी कोई लाइनक्स कमांड होता है, कमांड फिर उसके आगे ऑप्शन, ये ऑप्शन जो है ना, इस कोई भी कमांड के अंदर मैन करके जाओगे तो ऑप्शन मिल जाएगा, पूरा ऑप्शन है। सब कुछ हम लोग यूज नहीं करते, थोड़ा बहुत यूज करते हैं, जो यूज करते हैं वो याद आ जाएगा। अभी ls का साथ जो कमांड है उसका n, और कैट के साथ n और हेड के साथ n, सब अलग अलग मीनिंग होता है, ठीक है, उसको याद रखना है, करते करते याद हो जाएगा। ऐसे नहीं कि ls के साथ n जो मतलब और कैट का n मतलब, उसका n मतलब सब एक है, एक नहीं है, सब अलग अलग है, ठीक है, वो होता है ऑप्शन। तो मैंने अभी ये डायरेक्टरी वाला को देखा। अभी ये जो डायरेक्टरी है, मैंने जब ll किया, ये ls किया, क्या बता रहा है, D1 का ओनर कौन है, रूट है, और ग्रुप कौन है, ये रूट के अंदर ही है, ठीक है। लेकिन मुझे देखना है ये जो D2 D3 D4 D5 हुआ, इसका ओनर कौन है। आगे हम चेंज करेंगे ओनर, लेकिन अभी फिलहाल मुझे देखना है इसका ओनर है कौन। तो मुझे कमांड लगाना है ट्री, ये जो p लगाया था पाथ, इसके साथ में u दिया, मतलब यूजर कौन है, देखो बता रहा है यूजर रूट है। मैंने इसके साथ लगाया यूजर एज वेल एज ग्रुप, मुझे दोनों ही दिखा, तो ये रूट देखो यूजर और ग्रुप दोनों को दिखा रहा है, ठीक है। सर, हाँ सुब्रत, एक डाउट था। बोलो बोलो। जो हम ट्री यूज करके जो डायरेक्टरी बनाते हैं, उसमें एक साथ एक ही डायरेक्टरी बनाते हैं, दूसरा डायरेक्टरी या दूसरा फाइल एक साथ नहीं बना सकते। जैसे कि यहाँ पे हो गया, हमने डायरेक्टरी 5 में बनाया, 4 में बनाया है एफएक्स को, एक फाइल बनाया और एक डायरेक्टरी बनाई, हम्म, दो दो कमांड बाद में जाके बनाए, लेकिन एक साथ नहीं बना सकते। हाँ बना सकते हैं। मान लो तुम्हारा एक चाय की दुकान है, एक कटोरा है, एक ही कटोरा में, आधा कटोरा में चाय और आधा कटोरा में कॉफी बना सकते हो, नहीं। तो ऐसा सोचना भी गलत है। अगर वो हो सकता है तो ये भी हो सकता है, समझ गए। मैं सोच उन्होंने रहा हूँ बताया कि कि एक ही कमांड से मैं डायरेक्टरी भी बना लूंगा, पूरा एक फाइल भी बना लूंगा, एक ही कमांड से। एक कमांड से नहीं होगा, देखो ऐसा हो सकता है MKDIR, मैं DX1 एक डायरेक्टरी बना रहा हूँ, फिर सेमीकोलन दिया, मैं दूसरा कमांड दे रहा हूँ TOUCH टच, एक फाइल बनाऊंगा किसके अंदर, DX1 के अंदर फाइल बना रहा हूँ F1, ये मैंने दो कमांड को जोड़ दिया,
जैसे मैंने पहले चाय बना लिया, खाली कर दिया कैन, फिर मैंने कॉफ़ी बना रहा हूँ, ठीक है, वो हो सकता है, लेकिन एक ही साथ नहीं हो सकता। ये दो कमांड मैंने जोड़ दिया सेमीकोलन से, इससे क्या होगा, देखो उसके आगे मैं एक कमांड जोड़ रहा हूँ -l, ठीक है, तो तीन कमांड एक साथ रन होगा, एक एक करके। देखो डायरेक्टरी बन गया, उसके अंदर फाइल बन गया, फिर ls-l भी दिखा दिया। डायरेक्टरी बनाए कहाँ पर, dx1, dx1 कहाँ है, ये है dx1। चलो देखते हैं इसके अंदर फाइल बना कि नहीं, ls-l dx1, इसके अंदर मुझे देखना है। देखो फाइल f1 बन गया, लेकिन एक ही कमांड से कैसे होगा, क्योंकि मेक डायरेक्टरी कमांड अलग है, फाइल बनाने का कमांड अलग है, तो मैं मल्टीपल कमांड जोड़ सकता हूँ एक साथ, सेमीकोलन, ठीक है, उससे मल्टीपल कमांड दे सकते हैं, ठीक है। चलो अभी मैं दूसरा एक चीज दिखा रहा हूं, ये जो मैंने फाइल बनाया, डायरेक्टरी बनाया, डायरेक्टरी के अंदर फाइल बनाया, ठीक है, कैट कमांड से भी तुम फाइल बना सकते हो पर्टिकुलर पाथ देने के बाद, लेकिन मुझे अभी ये D1 को डिलीट करना है, ये D1, D2, D3, D4 जो भी है इसको डिलीट करना है। लेकिन डिलीट करने से पहले मैं एक चीज करना चाहता हूं, ट्री D1, सॉरी, ट्री D1, इसमें दिखा रहा है D4 के अंदर एक फाइल है, मुझे इस फाइल को मूव करना है D4 से D2 में, ठीक है, मूव करना है, D4 में नहीं रहना चाहिए, ये गलती से हो गया, मुझे एक्चुअली इसको D2 में भेजना है। तो मूव के लिए कमांड क्या है, MV। किसको मूव करना है, fx को, लेकिन fx बंदा ये है कहाँ पर, ये तो D1 में है, D2 में है, D3 में है, D4 के अंदर है। अभी इसको भेजना कहाँ है, D1 के अंदर जो D2 है वहां पर भेजना है, ठीक है। तो कमांड, फिर सोर्स, फिर टारगेट, राइट, यस। चलो ये एक्सेप्ट कर लिया, मुझे चेक करना है, तो ट्री कमांड फिर से चलाओ, देखो fx कहां पर आ गया अभी, और D4 छोड़ के D2 में आ गया, उसका लाइन देखो D2 से खींचा गया है, पहले D4 से दिख रहा था, ठीक है। फिर से फाइल के अंदर ही ये डायरेक्टरी नहीं बन सकता, जैसे कि एफएक्स के अंदर एक और डायरेक्टरी नहीं बन सकता है? नहीं, देखो तुम कभी चिट्ठी लिखे हो कभी, नहीं सर, नहीं, चिट्ठी। क्योंकि तुम लोग चिट्ठी जमाने के बाद में हो, हाँ सर। हमारे जमाने में हम लोग चिट्ठी लिखते थे। देखो आज भी तुम अगर अप्लाई करोगे कहीं पर तो एक CV लिखोगे, एप्लीकेशन सर। करोगे, उसको एक हाँ एनवलप के अंदर भरोगे, हाँ सर। ठीक है ना, ब्राउन पेपर के एनवलप आता है, फिर उसको तुमने हाँ एड्रेस लिख के भेज दिया, ठीक है। हाँ चलो एनवलप के अंदर तो तुम 2-3 पन्ने का तुम्हारा CV डाल सकते हो, CV का जो पन्ना है उसके अंदर एनवलप डाल सकते हो, नहीं सर, वो नहीं सर। एनवलप तो डाल। फाइल के अंदर डायरेक्टरी नहीं होता है, डायरेक्टरी के अंदर फाइल होता है, एनवलप के अंदर तुम 2-3 पन्ने का CV या कुछ डॉक्यूमेंट्स या चिट्ठी वगैरह डाल सकते हो, लेकिन पन्ने के अंदर कैसे डालोगे, समझ में आया। ठीक है। तो डायरेक्टरी के अंदर तुम फाइल बना सकते हो, फाइल के अंदर डायरेक्टरी नहीं बनता है। डायरेक्टरी मतलब एक कंटेनर, एक फोल्डर, जो विंडोज में फोल्डर बोलता है, लाइनक्स में डायरेक्टरी बोलता है, अल्टीमेट सेम। और फाइल जो है विंडोज में भी फाइल है, एक टेक्स्ट फाइल, यहाँ भी एक फाइल है टेक्स्ट फाइल, कैट से बना सकते हो, VI से बना सकते हो, या तुम ये टच से बना सकते हो, ठीक है। अभी मैं ये जो बनाया ना D1, D2, D3, D4, D5, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, D1 से लेकर पूरा। तो इसमें RMDIR काम नहीं करेगा। RMDIR अगर मैं D1 बताया, ये बता रहा है कि ये एम्प्टी नहीं है। अगर ये एम्प्टी होगा मतलब D1 के अंदर कुछ नहीं है, ना तो फोल्डर ना तो फाइल, तब ये डिलीट होगा। लेकिन दूसरा कमांड है RM-RF D1, इसमें क्या हुआ, RF मतलब रिकर्सिवली एंड फोर्सफुली D1 को डिलीट करो, तो D1 के अंदर जितना भी कुछ है सब डिलीट होके ये भी डिलीट हो जाएगा, देख लो। आपने कभी बैंक में या पोस्ट ऑफिस में
ऐसा बनाया कि ईच महीना में 500 करके 1000 करके जमा करते जाओ? नहीं, SIP टाइप का रिकरिंग डिपॉजिट, जो हाँ आपने बताया RD सही है, हर महीने आपको FD होता है ना सर, FFD, हाँ 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 फ्लेक्सी फिक्स डिपॉजिट होता है वो FFD। हाँ, फिक्स डिपॉजिट अलग है, यहाँ पर रिकर्सिव, रिकर्सिव मतलब एक 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 करके, ओके, वन बाई वन, ये क्या करेगा, 1 by 1 D5 डिलीट करेगा, फिर D4, फिर D3, फिर D2 के अंदर फाइल डिलीट करेगा, फिर D2 डिलीट करेगा, फिर D1 डिलीट करेगा, ठीक है। वो एक फॉर नेक्स्ट लूप लगा के वो इंटरनली ये कमांड काम करता है, क्योंकि कमांड मतलब क्या है, अल्टीमेट कोड, कुछ कोड लिख के रखा है। जो मैंने RM कमांड चलाया ना, अगर आपने ऐसे देखेंगे WHICH RM, तो ये बता देगा ये RM कमांड का कोड कहाँ से चल रहा है। ये बताया RM कमांड USR bin RM के अंदर से चल रहा है, ठीक है, USR bin RM के अंदर से ये कमांड चल रहा है। अगर आप कोशिश करेंगे देखने का इसमें क्या लिखा है, तो जंक कैरेक्टर दिखाएगा, आप देख नहीं पाएंगे क्योंकि वो कंपाइल्ड है, ठीक है, जैसे प्रोग्राम लिख के कंपाइल करता है उसी तरह कंपाइल्ड है, देख नहीं पाएंगे। तो नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, नेक्स्ट ऑप्शन है VI एडिटर, एडिटर को सीखना है। अभी मैंने कैट से जब फाइल बनाया था, यू कैन क्रिएट फाइल बट यू कैन नॉट एडिट इट, यू कैन ऐड और अपेंड फ्यू मोर लाइंस एट द एंड ऑफ द फाइल, बट यू कैन नॉट मॉडिफाई द फाइल। एग्जिस्टिंग जो कंटेंट है उसमें कुछ गलत हो गया, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, उसको ठीक करने का ऑप्शन नहीं है। वो होता है हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम आपको एक एडिटर देता है, जैसे विंडोज देता है नोटपैड, यहाँ भी है VI एडिटर। तो VI से अगर कुछ नया फाइल बनाना है, देखिए VI मैंने डाला न्यू, एंटर, ये ब्लैंक स्क्रीन है और नीचे दिख रहा है न्यू, और फाइल का नेम भी न्यू दिया मैंने। यहाँ पर मुझे कुछ टाइप स्टार्ट करना है, मतलब कुछ लिखना है, तो पहले ये जो मोड है ना इसे कहते हैं कमांड मोड। यहाँ पर आपको I प्रेस करना है, I मतलब इंसर्ट मोड में आ गया ये। अभी आप इसमें टाइप कर सकते हैं, ये टाइप करने के बाद अगर आप इसको सेव करना चाहते हैं तो पहले आपको इस इंसर्ट मोड से कमांड मोड में जाना है। इंसर्ट मोड से कमांड मोड में कैसे जाएंगे, प्रेस एस्केप, एस्केप किया है ना लेफ्ट टॉप, उसको प्रेस कीजिए, देखिए इंसर्ट चला गया और ये कमांड मोड में आ गया। मुझे अभी कमांड देना है, इसको सेव करना है। सेव करने का कमांड है, कोई भी कमांड हम पहले देंगे कोलोन, फिर WQ, तो ये सेव हो जाएगा। अगर मैं सिर्फ W दिया तो सेव होगा और क्विट नहीं होगा, यहाँ ही रहेगा। जैसे नोटपैड में होता है एक ऑप्शन कंट्रोल S, मैं टाइप करते करते बीच बीच में कंट्रोल S कर रहा हूँ, वो सेव होते जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ओनली W, कोलोन W, ये सेव इतना सा हो जाएगा। फिर आप आगे और लिखिए, फिर आप बिना सेव आप निकाल सकते हैं Q, मैं सेव नहीं करना चाहता हूँ, Q एक्सक्लेमेशन मतलब बिना सेव करे क्विट करो और फोर्सफुली। अगर ये लाइनक्स टोक रहा है भाई तुमने कुछ टाइप किया था सेव तो करो, नहीं मैं फोर्सफुल ऑप्शन बता दिया, ठीक है, मुझे सेव नहीं करना है। तो डिफरेंट कमांड है, WQ, ओनली W, ओनली Q, Q एक्सक्लेमेशन, एक है क्विट विथ फोर्स, एक है राइट क्विट, ठीक है। मैं अभी क्विट कर रहा हूं इसको, तो कोई न्यू नाम का फाइल नहीं बना है। मैं अभी एक एग्जिस्टिंग फाइल को ओपन कर रहा हूं, passwd को VI से, इसको देखिए ध्यान से, VI passwd, एंटर किया, पूरा कंटेंट दिख रहा है। इस कंटेंट में मैं लाइन नंबर के साथ देखना चाहता हूं, तो ये जो कमांड प्रॉम्प्ट है ना, मतलब कमांड ऑप्शन है, इंसर्ट नहीं, इस कमांड ऑप्शन में कोलोन SENU, सेट नंबर, एक्चुअली है ये सेट नंबर, शॉर्टकट में SENU। जैसे ही आप एंटर करेंगे देखिए लाइन नंबर आ गया 1 से लेकर 36 तक। वो तो कैट के साथ, हिट के साथ अलग -n, और कैट के साथ -n अलग। कैट के साथ -n मतलब लाइन नंबर, ये
मैं एक एडिटर के अंदर हूँ, एडिटर का कमांड दे रहा हूँ, ठीक है, वो तो कमांड के साथ उसका पैरामीटर था। ये अंदर आके मैंने एसी एन्यू दिया तो लाइन नंबर दे रहा है, ठीक है। आगे आगे मुझे क्या करना है, देखिए फर्स्ट मान लीजिए 5000 लाइन का है, मुझे लास्ट लाइन में जाना है, वहां जाके कुछ लिखना है, तो एक ही झटके में लास्ट में कैसे जाएंगे। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट होता है ना, थर्ड ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट, जो स्टार्टिंग और एंडिंग, एंडिंग वाला को 2 बार प्रेस कीजिए, देखिए लास्ट लाइन में चला गया कर्सर आपका, और ओपनिंग वाला को 2 बार प्रेस कीजिए, देखिए फर्स्ट लाइन में चला जाएगा आपका कर्सर, ठीक है। ये है स्टार्टिंग एंडिंग जाने के लिए। बीच में कहीं जाना है, लाइन नंबर 20 में जाना है मुझे, तो इसी कमांड ऑप्शन में ही आप 20 टाइप करो, कहीं नहीं दिखेगा, 20 कहीं नहीं दिख रहा है, वो कैश में है, और शिफ्ट दबाकर जी प्रेस करो, मतलब कैपिटल जी मतलब गो, देखो चला गया लाइन नंबर 20 में, ठीक है। फिर ओपनिंग को 2 बार क्लिक करो, फर्स्ट में चला गया। अभी क्या है, मुझे ये जो लाइन नंबर 10 11 है ना, 10 के बाद, ऑपरेटर के बाद और गेम्स के पहले मुझे एक लाइन ऐड करना है, यहाँ पर इंसर्ट करना है। तो कमांड मोड में हूं मैं, इंसर्ट में नहीं हूं, कमांड में हूं। आप यहाँ पर ओ प्रेस कर सकते हैं, ओ प्रेस करने से स्प्लिट हो जाता है और इंसर्ट भी आ जाता है, ठीक है। लाइन नंबर 11 देखिए, गैप हो गया, लाइन नंबर 11 का कंटेंट 12 में चला गया, टोटल 36 लाइन था, अभी 37 लाइन हो गया। अगर आपको ये नहीं चाहिए, मैंने इंसर्ट को ऑफ कर दिया एस्केप प्रेस करके, और एक लाइन को डिलीट करने के लिए डी, डबल डी से एक लाइन डिलीट होता है, देखिए फिर से 36 लाइन आ गया, और 11 में गेम्स है। अगर आपको ये याद नहीं है ओ वाला, आप आई प्रेस कीजिए, इंसर्ट में जाइए, लाइन नंबर 10 का लास्ट में जाइए, सर ऐसे भी लाइन नंबर जा सकते हैं। हाँ जाके आप एंटर कीजिए, एक गैप हो गया, ठीक है। लेकिन वो डायरेक्ट ऑप्शन है, एक ओ प्रेस कर दीजिए तो इंसर्ट भी होता है, स्प्लिट भी होता है, और यहाँ आपको लास्ट में जाके एंटर करके फिर करना है। यहाँ आपने कुछ टाइप किया, एंटर, जितना भी टाइप करना है टाइप कीजिए, फिर आप सेव कीजिए। 2 3 बार वो प्रेस करें, 2 3 लाइन आ जाएगा। नहीं, एक ही हो, उसके बाद एंटर, क्योंकि इंसर्ट में आ गया। अभी आपको ये लाइन नहीं चाहिए, तो इंसर्ट को ऑफ कीजिए एस्केप प्रेस करके, और डी से एक ही लाइन डिलीट होता है, ठीक है। देखो मुझे ये 3 लाइन डिलीट करना है, तो यहाँ डी डी, बैक स्पेस में करेंगे तो एक एक करके कैरेक्टर डिलीट होते जाएगा, वो भी होगा, ठीक है। वो तो नॉर्मल ऑप्शन है, ये इसका स्पेशल कमांड है, डी से एक एक लाइन डिलीट होता है। मुझे अभी ये 36 लाइन है ना, मुझे फर्स्ट 4 लाइन, रूट बीन डेमन एडियन, ये 4 लाइन कॉपी करके नीचे पेस्ट करना है, तो टोटल लाइन हो जाएगा 36 + 4 40, ठीक है। तो 4 लाइन कॉपी एंड पेस्ट के लिए क्या करें, लाइन का स्टार्टिंग में रहना है, कॉपी के लिए 4YY, देखिए नीचे दिख रहा है 4 लाइन्स यहाँ, ठीक है। 4 लाइन को कॉपी किया, देखिए लाइनक्स ओपन सोर्स है, पूरा वर्ल्ड से इसको अपडेट किया, तो जिस देश में इसको अपडेट किया था उसके वहाँ कॉपी को यांग खींच के, अब देख सकते हैं गूगल में यांग का मतलब क्या है, तो 4 लाइन यांग था। मुझे अभी लास्ट में जाना है और यहाँ पेस्ट करना है, पेस्ट पर्पस पी, देखिए 4 लाइन पेस्ट हो, ठीक है। अभी इसको मैं कोलोन क्यू एक्सक्लेमेशन, मतलब जितना भी मैंने चेंजेस किया था ना, कुछ सेव नहीं होगा, ओरिजिनल फाइल ही रहेगा, ठीक है। ये आ गया सर हाँ, वो जो लाइन आप चेक कर रहे थे ना, तो ये राइट साइड बॉटम में दिखा, टॉप दिखा रहा था, ऑल दिखा रहा था, वो क्यों चेंज हो रहा था, थोड़ा समझ नहीं आया। समझा नहीं, फिर से थोड़ा क्लियर करो। वीआई के अंदर, हाँ जब आप हाँ मैंने वीआई ओपन किया, अब बोलो। यार नीचे दिखा रहा है, ऑल दिखा रहा है, अच्छा, टॉप दिखा रहा था, कभी कभी ऑल दिखा रहा था। ये वाला,
राइट साइड बॉटम। ये हाँ हाँ, कभी टॉप दिखा रहा था, कभी ऑल दिखा रहा था। और यार कमांड भी जब जा रहे थे ये रूट में जो पोजीशन है ना तुम्हारा, उसी के हिसाब से वो कुछ चेंज करते रहते हैं। देखो लाइन नंबर चेंज हो रहा है, लाइन कलम, ये लाइन नंबर 11 12, अभी देखो यहाँ मैं साइड में जा रहा हूँ, कलम नंबर चेंज हो रहा है। ठीक है, हाँ, ऑल मतलब पूरा ये जो डॉक्यूमेंट है, पूरा डॉक्यूमेंट तुमको दिख रहा है यहाँ पर। अच्छा। और यहाँ फाइल टॉप का दिखा नेम, रहा था यहाँ इस टोटल इसी के लाइन, लिए। टोटल जितना भी बाइट्स या ब्लॉक यूज किया, बाइट्स, एक एक कैरेक्टर। हाँ ठीक है, हाँ। ये तुम ऐसे करोगे, अभी देखो 33% दिख रहा है। अच्छा अच्छा। अभी मैं नीचे आ रहा हूँ, ये बॉटम देखो, बॉट में आ गया बॉटम। अभी ये ऊपर हम्म, जाओ, ये टॉप दिख रहा है। ये मैंने पूरा कर दिया तो मतलब बता रहे थे कि ऑल मतलब पूरा डॉक्यूमेंट ही दिख रहा है। ठीक है, उसके हिसाब से वो दिखा रहा है यहाँ पर क्या है। इसको छोटा कर देंगे ना तो वो जो टॉप बॉटम सब आ जाएगा। देखो अभी कर्सर कौन सा पोजीशन में है, 1 1 मतलब फर्स्ट लाइन फर्स्ट कॉलम। ठीक है, यस और यस। वो टॉप में है। मैंने जैसे ही नीचे आ रहा हूँ वो देखो चेंज हो रहा है, जैसे मैं साइड में जा रहा हूँ कॉलम भी चेंज हो रहा है। ठीक है, लेकिन अभी भी टॉप में ही है। देखो वो परसेंटेज दिखा रहा था, यहाँ कुछ परसेंटेज आता है, कितना परसेंटेज दिख रहा है टॉप से। नहीं ऐसा कुछ नहीं है एक्चुअली, वो हाँ, एक वो कुछ परसेंटेज आने के बाद से दिखाना स्टार्ट कर देगा। ऐसे होते होते बॉटम में चला जाओगे। इसका मेन कारण है सिक्योरिटी स्टेबिलिटी। विंडोज में तुम कुछ इंस्टॉल करो, देखो इंस्टॉल होने के बाद रिबूट, एक बार रिबूट कर दो। अभी सर्वर में बैंकिंग का ट्रांजैक्शन चल रहा है, एडमिनिस्ट्रेटर कुछ इंस्टॉल किया, रिबूट हो जाएगा। ये तो एक्सेप्टेड नहीं है ना। मैंने मोबाइल पे एक ऐप इंस्टॉल किया, रिबूट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब इंडस्ट्री का एक्सेप्टेड नहीं है। ये हमारे तुम्हारे मशीन में चल सकता है, यूजर फ्रेंडली है, हमें अच्छा लगता है ग्राफिक्स, किट किट किया हो गया काम खत्म। ठीक है, ओपन, इसका स्टेबिलिटी भी नहीं है। तुम एक विंडोज इंस्टॉल किया, इसका स्टेबिलिटी नहीं है कि ये लैपटॉप तुम्हारा कितना दिन काम करेगा। 1 महीना 2 महीने के बाद क्रैश भी हो सकता है। लेकिन एक एक लाइनेक्स सर्वर 20 22 साल से काम कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मेन पर्पस सिक्योरिटी हाँ, हैकर हैक नहीं कर सकता है, वायरस का प्रॉब्लम है नहीं। जब से विंडोज डेवलप हुआ तब से वायरस डेवलप हुआ, वायरस एंटीवायरस साइड बाय साइड डेवलप हुआ। ठीक है, तो इंडस्ट्री का मेन चॉइस है सिक्योरिटी स्टेबिलिटी। ठीक है, वो इस फुलफिल करता है, इसलिए ये चलता है मार्केट में। जितना भी तुम देखोगे ना, बैंकिंग सर्वर, रेलवे रिजर्वेशन, एयरलाइन रिजर्वेशन, ऑनलाइन परचेजिंग, जितना भी बड़ा बड़ा सब है, सब लाइनेक्स सर्वर। इसलिए इंडस्ट्री में जाओगे अगर सपोर्ट बेस या कुछ ऐसा काम, तो लाइनेक्स। अभी तो डेस्कटॉप भी चेंज हो रहा है, कोई कोई कंपनी डेस्कटॉप चेंज कर रहा है, लाइनेक्स मिंट डाल रहा है, विंडोज हटा के लाइनेक्स मिंट डाल रहा है। क्योंकि विंडोज रखने से उसको पर ईयर उसको वो लाइसेंस फीस देना पड़ता है। अभी ऑफिस में कितना लैपटॉप यूज होता है, 500 1000 2000 4000, उतना लाइसेंस फीस कौन देगा। हर कोई सोचता है कि मेरा कॉस्ट मिनिमाइज हो जाए, तो मिंट डाल रहा है, फ्री वर्जन है लाइनेक्स लाइनेक्स का मिंट, बहुत सारा कंपनी डाल रहा है अभी। तो मिंट आप कर सकेंगे, वहाँ ग्राफिक्स भी है, कमांड भी है, उसमें दोनों चीज़ें उसमें ग्राफिक्स पूरा। जो चीज़ फ्री है उसमें सिक्योरिटी है, लेकिन जो चीज़ लाइसेंस है उसमें सिक्योरिटी का कंसेप्ट नहीं है। फ्री नहीं है, लाइसेंस फ्री नहीं है, लाइनेक्स फ्री नहीं है। लाइनेक्स आपको ओपन सोर्स दिया है, आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, अपने हिसाब से अपडेट करो। आपका दिमाग का भी 1% लाइनेक्स में आ गया तो लाइनेक्स भी अपडेट हो रहा है ना, पूरा धरती से इसको अपडेट कर रहे हैं। ठीक है, मेन इसका ये जो लाइनेक्स माइनस वगैरह जितना भी अपडेट होता है ना, ओएस वगैरह, ये मैक्सिमम टेक्नोलॉजी के टॉप में है इजराइल। हर चीज टेक्नोलॉजी का इजराइल डेवलप करता है, फिर उसका मॉडिफिकेशन होता है यूएस में, क्योंकि उसके पास पैसा है। ठीक है, ये डेवलप। और विंडोज क्या है, विंडोज एक
ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया, ठीक है। जो जिसने बनाया, अभी मान लो मारुति क्या महिंद्रा को पावर देगा तुम मेरा मशीन को डिस्टर्ब कर दो या ठीक करो, अपडेट करो? नहीं देगा ना, वो उसको उसके अंदर ही रखेगा उसको। तो माइक्रोसॉफ्ट ने भी किसी को नहीं दिया चांस, वो उसका प्रोपाइटरी है, ठीक है। तुम्हारा घर तुम कैसे रखोगे, खिड़की रखोगे या नहीं रखोगे, खिड़की में ओपन रखोगे, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट ने ऐसे ही रखा है। लेकिन लाइनेक्स जो बना था, एक्चुअली लाइनेक्स का मेन उसका पीछे कौन है, हिस्ट्री में कौन है? यूनिक्स। यूनिक्स किसके लिए बनाया था? यूएस आर्मी के लिए बनाया था, एटी लेबोरेटरी ने। तो वो पहले से ही सिक्योर, ठीक है। और विंडोज पहले से क्या, लुक एंड फील, दिखावा, ठीक है। जैसे पिक्चर में भी कभी कभी दिखता है ना, वो गुंडे का एक बेटा है, पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं है, लेकिन ड्रेसेस पहन के, सोने के चेन पहन के निकल गया, तो लुक एंड फील दिखा रहा है। तो विंडोज भी दिखावा है जस्ट, ठीक है। लेकिन उसमें सिक्योरिटी नाम का कोई चीज है नहीं। वायरस भी प्रॉब्लम होता है, हैकर प्रॉब्लम भी होता है, ठीक है। लेकिन लाइनेक्स जो है ये जबरदस्त सिक्योरिटी। ये तो आपको फ्री वर्जन दिया है सीखने के लिए। देखिए, एक प्रोडक्ट तभी मार्केट में चलेगा, कंपनी लेगा, जब उसका यूटिलाइजेशन मतलब सपोर्ट बेस होगा। आपने एक मोबाइल खरीद लिया और यहाँ कोई दुकान है ही नहीं सपोर्ट देने के लिए, तो वो नहीं खरीदेंगे कोई। एक बार खरीद लिया तो भूल से खरीद लिया, अगर उसका सपोर्ट है तो तभी चलेगा, ठीक है। तो लाइनेक्स, AWS, ये लोग समझ गया मार्केट को, इसलिए फ्री वर्जन भी रख दिया, भाई तुम लोग सीखो। क्योंकि जितना लोग सीखेगा, सपोर्ट का बंदा मिलेगा, तभी कंपनी उसको यूज करेगा। अगर सपोर्ट ही नहीं मिलेगा तो कंपनी कैसे यूज करेगा? लेकिन ये लाइसेंसिंग है, कंपनी को लाइसेंस देना पड़ता है, ठीक है। इंडस्ट्री में यूज जो होता है वो रेड हैट होता है, उबंटू होता है, उसका लाइसेंसिंग है। लेकिन रेड हैट का जो कमांड 100% सेम, रॉकी, सेंटोस, अमेजन, सब सेम कमांड, ठीक है। हो सकता है 99% सेम, 1% थोड़ा इधर उधर है, वो तो आप सीख ही लेंगे 1%। हाँ, सेंटोस फ्री वर्जन है। पहले फ्री वर्जन था फेडोरा, अभी फेडोरा को बंद कर दिया, फेडोरा ओनली डेवलपमेंट होता है, और फ्री वर्जन कर दिया रॉकी को, सेंटोस को यूज करो। और रेड हैट हम लोग जब सीखे थे RHEL 4 में एग्जाम दिए थे, तब रेड हैट फ्री देता था, ठीक है, लिमिटेशंस था। अभी रेड हैट ने क्या किया, रेड हैट एक कर दिया लाइसेंस वाला और एक कर दिया फ्री वाला, मतलब सीखने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए ये यूज करो, और कंपनी में रेड हैट यूज होगा। रेड हैट उबंटू मैक्सिमम चलता है, कभी कभी सूजे चलता है, डेबियन चलता है, बहुत इसका वर्जन है। लेकिन आपको अगर ये दो आ गया ना, मतलब एक रॉकी में किया या सेंटोस में किया, और एक उबंटू में, उबंटू बाद में दिखाएंगे तो मान लीजिए आपके पास 99% नॉलेज हो गया, 1% कुछ प्लस माइनस हो सकता है, ठीक है, वो आप मैनेज कर लेंगे उसी जगह पर, राइट। 2 वर्जन ही आप ऐसे कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ का ये जो है, यहाँ से मुझे सेव करके निकालना है। मैंने क्या सिखाया था? :WQ। एक और एक कमांड है, ये कमांड मोड में शिफ्ट प्रेस करके अगर आप डबल जेट प्रेस करेंगे, मतलब कैपिटल जेट 2 बार, तो भी ये सेव और एग्जिट हो जाता है। ये सोलारिस का कमांड यहाँ भी लेता है। अभी मैं फिर से पासवर्ड में जा रहा हूँ, और यहाँ पर मैं ना बैश ढूंढना चाहता हूँ, फाइंड, ये बैश, यहाँ भी एक बैश है, तो कैसे ढूंढेंगे? पहले कोलोन, ठीक है, फिर %s/ कोलोन %s/sh। टॉप में है कोलोन %s/VASH। I think वो नाम चेंज हो गया।
अच्छा अच्छा, वो बैच डिलीट हो गया, डिलीट हो गया। बैच डिलीट ही हो गया, तो डिलीट कुछ गलती हुआ था इसलिए बैच नहीं दिख रहा है। प्रेस हो गया। मैं एक काम करता हूँ, पहले इसको सेव करता हूँ, फिर कोलोन परसेंट टाइम आ गया। परसेंट एस स्लैश बी ए एस एच। ये डिलीट क्यों हो जा रहा है? कोलोन क्यू एक्सक्लेमेशन। आई थिंक वो जो आनंद का जो ए है वो मिल गया है। वो जाने दो, कोई मैटर नहीं, यूजर लॉगिन नहीं होगा, लेकिन बैच तो सर्च होना चाहिए ना। देखो दो बैच में वो ये हिट किया, टेक्स्ट है। वो दो बैच में हिट किया है, हम्म। कलर दिखा रहा है, हाँ, लेकिन वो डिलीट भी कर दिया क्यों, वो एक क्वेश्चन है। डिलीट करने से देखता हूँ एस, इंटर करने से डिलीट हो जाता है। ये परसेंट स्लैश एस स्लैश बैच, नहीं ये एडिटर का कुछ कमेंट है ही नहीं, ये कमेंट ही है एस स्लैश बैश। देखो डिलीट हो रहा है, ठीक है, मैं इसको कल स्टार्ट करता हूँ। ये जो फाइंड एंड रिप्लेस, ठीक है, कुछ में पैटर्न सर्च करने के लिए तो सर ग्रेप यूज करते हैं ना। हाँ वो तो अलग बात है, वो तो कमांड में है, यहाँ थोड़ी है। यहाँ कमांड यूज कर सकता है, जैसे कि मैंने दिया कमांड फ्रॉम। एल एस, हाँ एल एस हाइफन एल, ये आ रहा है, मैं यहाँ से इसको पैटर्न मैचिंग दिया ग्रेप पास, तो ये पास रिलेटेड दो लाइन दिखाएगा। ये तो कमांड लाइन में, वो वीआई के अंदर नहीं है, ठीक है। वीआई के अंदर ऑप्शन ऐसे ही है, सर्च करो या सर्च एंड रिप्लेस करो, मैंने फाइंड एंड रिप्लेस, ठीक है। ग्रेप समझाएंगे कल, आज नहीं, इन्होंने बताया इसलिए दिखा दिया, ठीक है। हम लोग ग्रेप स्टार्ट करेंगे कल। ग्रेप और जो ये वीआई के अंदर जो सर्च कर रहे थे फाइंड एंड रिप्लेस, वो कल करेंगे, वहां से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कल बेसिक कमेंट का हो जाएगा, फिर नेक्स्ट डे से हम लोग स्टार्ट करेंगे यूजर मैनेजमेंट। बेसिक कमेंट के साथ ये ग्रेप ऐड होगा, उसके साथ AW का ऐड होगा, SCD ऐड होगा, तब जाके आपका बेसिक कमेंट खत्म होगा।